captain of Mumbai Heroes. We all want you to have fun, and that's the reason. Answerable questions from the super fan. अच्छी शुरुआत, सिंगल लिया और कहा जाता है क्रिकेट में आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। सबसे अच्छा जो मौका आपके पास होता है वो यही होता है कि आप दूसरे छोर पे चले जाएं और बॉलिंग को देखें, तो शायद यही बल्लेबाज ने किया आते ही। The bowling change doing the trick for Punjab. Chahal getting the wicket of Sameer Kochar, who's going great guns. ओ बेहतरीन शॉट, 4 रन, क्लास ऑफ एलिगेंस। कोई ऐसा जोर नहीं इस शॉट पर, सिर्फ दिशा दी और 4 रन मिलेंगे। महत्वपूर्ण अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे रितेश देशमुख, शायद वो जानते हैं कि विकेट्स हाथ में रखना बहुत जरूरी है 2020 क्रिकेट में, और बखूबी वो इसको करते हुए यहाँ पर कोई भी ताबड़तोड़ ऐसे शॉट नहीं खेल रहे हैं जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो। और यहाँ पे गैबी के द्वारा थोड़ा सा बॉल लेग स्टंप की तरफ, और यहाँ फाइन लेग ऊपर था। जब फाइन लेग ऊपर होता है आप उस दिशा में बॉल नहीं कर सकते। कुकी के लिए कोई मौका नहीं। Deft touch from Ritesh. We need to continue that. Another one. First on the onside and this time on the offside. Good cricket all around. Picking the right gaps, और ये भरपूर करके दिखाया है रितेश ने यहाँ पर। थर्ड मैन ऊपर, पॉइंट ऊपर, और उसके बीच में से खेल दिया एक इंपॉर्टेंट 4। यहाँ पर हर इंसान क्रिकेट को एंजॉय करता हुआ 2020 क्रिकेट, बैंग बैंग क्रिकेट यहाँ पर चलती हुई। 53 रन, एक ही विकेट यहाँ पे अभी मिला है। थोड़ा सा शॉर्ट गेंद और गैप में खेला, 4 रन, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। क्लोज टू द बॉडी रखा। Ritesh assuming the mantle of Sameer Kochar after his departure. Back-to-back boundaries, but no risk involved in those 2 strokes by virtue of that boundary. Into the 50s, Mumbai Heroes 53 for 1 in 4.3 overs. Already 9 boundaries. The fans of Mumbai Heroes must be waiting for the first 6 of the match. एलिगेंस, और यहां पर मिसफील्ड, 4 रन मिलेंगे। पंजाब के लिए बहुत सी मुश्किलें यहां उत्पन्न होती हुई। सोनू सूद थे शायद फील्डर, और जबरदस्त बल्लेबाजी, 4 रन मिल गए हैं। Ritesh Deshmukh getting another boundary of the final delivery. No line and length at all. Getting sufficient amount of width. Bisecting the gap there. A little bit of fielding lapse, one can say straight away, but it can be pardoned since they are film actors. 59 for 1 after 5. I'll hunt. He's asking us to throw. Are you throw? आप करते? $59 for 1 after 5. The important is, and now the spectators have increased in number here. Mainly the youth brigade have come here in large numbers to witness this encounter, because in Bengaluru they watch all languages movies. It's not just Kannada here. They watch Telugu movies, Tamil movies and Bollywood anytime. So Perwani is going to take strike. Ritesh Deshmukh at the non-strike is the end, 14 of 10. Gill will continue to bowl. 1 for 16. Outside the off stump. At the last moment withdraws his bat from the line and length of the ball.
And now over to Bobby. She's with someone. Poppy. Over to Poppy. I beg your pardon. Well, I'm here with the hero of Mumbai Heroes, Mr. Sohail Khan. Welcome. And tell me, what do you feel of CCL is in the 6th season now? How has that evolved over the years? It's lovely. I made more friends. I'm seeing more stadiums. As a child, I want to play in these big stadiums, and it's become reality for all of us, because we all have a certain kind of a child in us. And just coming here and playing with all the industries, and Vishnu has kept it happening. So really grateful to him. New teams have come in. There's Punjab this year that's come in. So welcome Punjab, and we're playing the first game against them. We just lost a wicket of Kochar, but I think we're doing a decent job. आपकी टीम के players बहुत ज़्यादा passionate हैं cricket के लिए. Do you guys practice a lot? We actually did this season. This particular season we had a lot of training camps. We played a lot of practice matches from December onwards. So for the first time I can say that we just don't have players. We have a team that has been put together. रितेश वापस आ गए हैं आपकी टीम में. That's the best thing that could just not happen to Mumbai Heroes. That's the best thing that could happen to my life, because Ritesh, he's a brother to me, and I'm so happy that he's back into the team. पिछले साल आप लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे. इस साल आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस की है, क्या होने वाला है, क्या सोच के आए? इस टाइम जो है जो हमने जो टीम इकट्ठी की है वो एक बैलेंस टीम है. तो इंशाल्लाह इस टाइम सिर्फ सेमीफाइनल्स नहीं, फाइनल्स तक आ जाएंगे. Who do you think are the key players of your team? There's the game changers. There's Ritesh. There's Shabir, Apurva Lakhia. I believe that if these three get going, they can change the game. Well, thank you very much and all the very best, and back to you guys. शुक्रिया पॉपी. और सोहेल खान से बातचीत करते हुए, जो कि को ओनर भी हैं मुंबई हीरोज के, और निश्चित तौर पे अभी बहुत खुश होंगे जिस प्रकार की स्थिति है उनकी टीम की. 61 रन पे केवल एक ही विकेट गवाया है 6ठा ओवर प्रकृति पर, और यहाँ पे चिंताएं बढ़ती हुई हैं. अगर आप पंजाब देश शेर टीम के सपोर्टर है, समर्थक है, इतना आसान नहीं है. बढ़िया विकेट है, अच्छी कंडीशंस हैं, तेज आउटफील्ड. मैं हूं अजय मेहरा और मेरे साथ है आज पहली दफा सिद्धार्थ. स्वागत है आपका. जी हाँ, थैंक यू सो मच अजय. क्या एटमॉस्फेयर है, ग्रेट क्रिकेट, बॉलीवुड स्टार्स, चीयर लीडर्स, व्हाट एल्स डू यू नीड? जी हाँ, बिल्कुल. सुनील शेट्टी जो हमेशा ही कप्तानी भी कर चुके हैं, हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, प्रेरित करते हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ सुझाव जरूर दे रहे होंगे अपने साथी खिलाड़ियों को. अगर आप जानते हैं उनकी फिलॉसफी ये है कि क्रिकेट इज माय लाइफ, सुनील शेट्टी कहते हैं, और लोग उनको प्यार से अन्ना भी कहते हैं. हाँ, पर खूबसूरत लड़कियां नहीं कहते उनको अन्ना, बाय द वे. यहाँ पे उठा के खेला है, यहाँ पे रन मिलेंगे. बढ़िया शॉट, अच्छा संपर्क, और यहाँ पे रितेश देशमुख आज कोई भी मौका गवा नहीं रहे. ये देखिए खेमा कितना खुश, वो आत्मविश्वास झलक रहा है. और कहते हैं आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की सारी बाधाओं को धाराशायी कर देता है, और वो आत्मविश्वास झलक रहा है जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं. वाह, क्या डांस हो रहा है यहाँ पे. बट व्हाट अ शॉट बाय रितेश देशमुख. देखा जाए कि कॉपी बुक स्ट्रोक जैसे था. बिल्कुल सीधे बल्ले से, ये नहीं कि अक्रॉस द लाइन खेला, सीधे बल्ले से खेला. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे संपर्क करते हुए 6 ओवर के बाद 66 पे 3 पे. और अभी तक बल्लेबाजी देखे समीर कोचर ने अच्छा कार्य किया था, 36 पे आउट हुए. और आपका स्ट्राइक रेट देखें, पूरे 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की समीर कोचर ने. कप्तान रितेश देशमुख अभी बने हुए हैं, 19 पे हैं, और 6 ओवर के बाद ऐसी स्थिति है कि बहुत ही बढ़िया नींव रखी है, खासकर रितेश देशमुख और समीर कोचर ने. देखा जाए तो इनिशियली देशमुख बहुत कॉशियसली खेल रहे थे, अब वो खुल के खेल रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं. लगता है वो समीर कोचर से इंस्पायर हुए हैं. बिल्कुल, और क्यों नहीं. देखिए, जब आपकी टीम में बैटिंग क्रम में एक गहराई नजर आती है, हमेशा फायदेमंद साबित होता है. रितेश देशमुख कप्तानी कर रहे हैं, और जिस प्रकार आगे से लीड कर रहे हैं, मुझे लगता है हौसला बड़ा होगा. बलराज यहाँ पे आते हुए गेंदबाजी में तब्दीली पंजाब देश शेर के लिए, टीम के लिए. और अगर आप देखें सोनू सूद थोड़े दबाव में होंगे, प्रेशर में होंगे कि इस वक्त क्या करें, क्योंकि ये साझेदारी भी थोड़ी पनपती हुई. मुझे लगता है कि वो बॉलिंग में बहुत चेंजेस लाते रहेंगे, अनप्रिडिक्टेबल गेम खेलने वाले हैं वो. देखिए, बिल्कुल बाएं पे स्क्रीन पे आप देखिए वो राकेश जौली हैं, जो कि हरियाणा से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं, और इस टीम को काफी उन्होंने सहायता की है, कोचिंग भी कर रहे हैं, और वो चिंतित नजर आ रहे हैं. यह बढ़िया शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, तेज आउटफील्ड है, 4 रन और मिलेंगे.
बेहरवानी अगर आप देखें पिछले सीजन में एक टॉप स्कोरर थे इस मुंबई हीरोज की टीम के, और वही फॉर्म को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जारी रखते हुए सिद्धार्थ। इनके रूट्स देखा जाए बेहरवानी साहब के, तो वो एक्चुअली लखनऊ से हैं और वो आए थे मुंबई एक्टर बनने के लिए, और लखनऊ में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए खेला करते थे और बड़े नामचीन क्रिकेटर हुआ करते थे लखनऊ में। क्या बात है, आपने तो पूरा राज खोल दिया, कहानी खोल दी उनकी, ज्ञान बांट दिया, इतिहास दे दिया। पर फिलहाल यहाँ पे इतिहास, मुझे लगता है गेंदबाज भी समरा होगा, जैसे रन जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ी। याद रखिए बलराज का पहला ओवर है और 6 रन खर्च चुके हैं। देखिए ये अच्छी गेंद, ये टप्पा खाने के बाद अंदर आए, अपील भी करते हुए, बल्कि मुझे तो लगा अपील नहीं प्लीड कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं कि आउट दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज कुछ तो हो। पर देखा जाए तो बड़े आराम और कंफर्टेबली खेल रहे मुंबई हीरोज के बैट्समैन। जहां पर ये पिछली गेंद पे नजर मारे, देखिए किस प्रकार टप्पा खाने के बाद कौन बदला, अंदर की तरफ आई। ये देखिए बहुत बढ़िया लाइन थी, ये मैट आप देखिए, ये एम्पायर को दिखती नहीं है, पर ये देखिए कैसे अंदर आई और बहुत बढ़िया लाइन। यहीं पे अगर बलराज करेंगे तो उनको सहायता मिल सकती है, मदद मिल सकती है। फिर देखिए कैसे अपील कर रहे हैं। यू मीन प्लीड कर रहे हैं? प्लीड कर रहे हैं, बिल्कुल। ये उठा के खेला आप, व्हाट अ शॉट, वेल फील्डेड। बॉबी देओल को भी देखा जाए तो बड़े गंभीर तरीके से मैच को देख रहे हैं। मैं सिद्धार्थ उनका एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं कि बॉबी देओल को जो मैंने पहले सीजन में देखा और मैंने पिछले सीजन में देखा, उनकी जो गेंदबाजी है बहुत इंप्रूवमेंट आई है। ये देखिए कैसी शॉट खेली थी, थोड़ा सा बल्ले का जो मुंह है उसको खोला और जी कारण गैप मिला, पर अच्छी फील्डिंग, जैसे आपने कहा सिद्धार्थ में डीप में कट किया। और रितेश देशमुख वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स है, बड़े लीन है, रोज 1 घंटा ट्रेडमिल में बिताते हैं, ये इनके फिटनेस का राज है। और सिद्धार्थ जब आज मुकाबला शुरू हुआ, जब ने टॉस जीता, जब मैं बीच में था दोनों कप्तानों के साथ, उसके बाद में प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं उनके पैड्स के बारे में उनसे पूछ रहा था। जो पैड पहने हुए हैं फेदरवेट पैड्स हैं, कहते हैं मैं बहुत सीरियसली, मैं पूरी तरह से मेहनत करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। ये बेहरवानी के पैड है, पर अगर आप रितेश देशमुख के पैड देखें तो बिल्कुल फेदर वेट पैड है। और रितेश देशमुख की एक सुपरस्टिशन ये है कि वो अपना बैट कभी बदलते नहीं है, और अगर उस बैट से वो जल्दी आउट हो जाते तब बैट बदलते हैं। इस बार बढ़िया लाइन, अच्छी लाइन, हालांकि 10 रन खर्चे इस ओवर में। 7 ओवर की समाप्ति 76 पे 1। आफ्ताब शिवदसानी और उनकी पत्नी या मुकाबला देखते हुए और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कम से कम बड़े से बड़ा स्कोर बनाए। और मैंने रितेश से पूछा टॉस के वक्त सिद्धार्थ की कितना स्कोर आप चाहते हैं, उन्होंने कहा पहले थोड़ा सा कहते जो भी बन जाए, फिर कहते हैं कि अच्छा स्कोर मैं चाहता हूं, और मिलता है अच्छा स्कोर ऐसे विकेट पे 170 रन होगा। जिस तरीके से वो चल रहे हैं 10 के रन रेट पर, तो लगता है 200 छू लेंगे ये लोग आराम से। या ये बाइक है, और देखिए अगर इस बाइक की बात करें, ये मुझे लगता है कि जो फैशन कॉन्शियस लड़के हैं लड़कियां हैं उनके लिए एक स्टेटमेंट है। बहुत ही जबरदस्त ये मशीन है, और देखते ही लगता है बस आप उसके ऊपर बैठ जाएं किस तरह। आप अभी मत बैठिएगा, कमेंट्री करिएगा प्लीज। परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैशन विद फंक्शनैलिटी। बस सिद्धार्थ आपके साथ चक्कर तो लगाना है, मतलब इस पे बैठ के, इस पे बैठ जाएंगे दोनों। देखिए मैं आपके साथ चक्कर नहीं करने वाला हूं, मैं करने वाला चक्कर विद कृति सैनन, जो है एम्बेसडर फॉर मुंबई हीरोज। मैं आपको भूल जाऊंगा कृति सैनन के सामने। यार ये तो मतलब गलत चीज है, कृति सैनन आगे तो हम हमें भूल गए। ये सिद्धार्थ बोल रहे हैं, मैं नहीं। दोस्त ना रहा। बड़ा गंभीर माहौल है पंजाब दे शेर की ओर से। क्या करे, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है सर। सिद्धार्थ कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा आपके काम आता है, और वो जो एक्सपीरियंस है अगर आप देखें मुंबई हीरोज टीम के साथ है। ऑपरेशन रिस्टोर 100 जो रिस्टोर करता है जिंदगियों के औरतों की जो विक्टिम्स हैं एसिड अटैक्स के, और प्रमोट करता है स्किन डोनेशन में, तो बहुत ही बढ़िया ये पहल है इस बार सीसीएल की। That's what I love about CCL. They always have a cause और दिल से सपोर्ट करते और हैं। केवल वो नहीं है, जो बिग ब्रदर फाउंडेशन है वो 1000 रन डोनेट भी करते, जो हर रन बनता है डोनेट करते हैं ऑपरेशन 100 रिस्टोर इनिशिएटिव के लिए। तो मुझे लगता है ये जो पहल है, मुझे लगता है केवल क्रिकेट नहीं है,
केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, पर ये जो पहल है मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धार्थ। हर खिलाड़ी इस कॉज के लिए बहुत इमोशनल है और मैं नोटिस करता हूं कि ये लोग तहे दिल से इन कॉजेस के लिए काम करते हैं। और फैन फॉलोइंग भी देखिए, कितनी सारे कॉलेज की लड़कियां हैं जो चिल्ला रही हैं रितेश रितेश रितेश। आई होप दे नो कि इज मैरिड। यहाँ अब आप बताइए कौन मैरिड है कौन नहीं है प्लेइंग 11 में। रितेश ये देशमुख। सिद्धार्थ स्पेशलिस्ट है हमारे। गॉसिपी सिद्धार्थ। रितेश मैरिड है, बेरवानी साहब बैचलर है सर। समीर कोचर शादीशुदा है, एक बच्चे के बाप भी है सर। आप बैटिंग क्रम से बताइए। आप नाम बोलते रहिए, मैं बताऊंगा किसका बच्चा है, कौन शादीशुदा है, कौन अच्छा single है। एक और चीज है, पार्ले जी का या बोर्ड भी लगा है। अगर कोई बैट्समैन वहां पे एक शॉट लगाता है तो उसको 25,000 रुपया का एक कैश पुरस्कार मिलेगा। तो ये भी अपने आप में मुझे लगता है जो बल्लेबाज है, खासकर जो सेट बैट्समैन है, उसके ऊपर निगाहें रहेंगी। वो पार्ले जी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है। देखिए वहां पे अगर आप शॉट खेलते हैं तो 25,000 रुपए मिलेंगे आपको। सिद्धार्थ आप खेल पाते? सर मैं तो एक ही शॉट में 25,000 रुपए कमा लेता। एक ओवर में कम से कम 1.5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में हो जाते हैं। तो फिर तो मतलब क्या कहे, फिर तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपको बीच में बिठा देते हैं, हम बल्ले के साथ बिठा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, खिला देते हैं। बिठा देते हैं। वैसे बीच बीच शॉट्स देख रहे हैं, आफ्ताब शिवदसानी अपने मोहतरमा के साथ बैठे हुए हैं। वो उनकी मोहतरमा जो है उनका लकी चार्म है। वो कहते हैं जब उनकी मोहतरमा उठ जाती है सीट से तो आफ्ताब आउट हो जाते हैं। ये उनके जहन में रहता है ये बात। 8 ओवर के बाद 81 पे 1। जय भानुशाली बड़े खुश लग रहे हैं। पर ये देखिए कितना बढ़िया खेला, लेट खेला। और ये पता है कब होता है सिद्धार्थ, जब आप सेट हो जाए। जब आप सेट हो जाओ, जो गेंद है फुटबॉल की तरह दिखती है, फुटबॉल के माफिक, और फिर जहां चाहे आप खेल सकते हैं। 8 ओवर के बाद 81 पे 1। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मुंबई हीरोज के लिए। 81 पे 1, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाजी की बात करें, सोनू सूद ने 2 ओवर डाले, 3 डॉट बॉल उसमें शामिल, महंगे साबित हुए। चहल भी आज जब 14 की इकॉनमी से 19 रन खर्चे, बलराज ने 10 रन केवल 1 ओवर अभी तक का डाला है, और ढिलोन भी है 1 ओवर में 5 रन। अलग किफायती साबित हुए, पर कुछ ना कुछ अलग करना होगा, विकेट लेने होंगे। एकमात्र विकेट जो मिला है वो गिल के नाम जाता हुआ। पर रितेश की दाद देनी पड़ेगी, बहुत स्टेबल गेम खेल रहे हैं। कहते हैं ना कैप्टन्स इनिंग्स। वैसे सोहेल खान जो को ओनर है ऑफ मुंबई हीरोज, वो खुद एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं पर खेल नहीं पा रहे हैं। पर एक और प्रश्न है यहाँ पे सीसीएल सुपर फैन के लिए, और ये है कि जो बैटिंग साइड है वो कितने रन बनाएगी। फिलहाल आपको बताएं 86 रन है, 1 विकेट नुकसान पे। अब ये कठिन है, आप कॉल कर सकते हैं 5-3-3, 5-9-9 पे, और 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो मैं और आपसे मुझे लगता है पहली कॉल आपकी जाएगी। अभी जा रही है। तो मैं आपसे कह रहा था कि सोहेल खान बहुत अच्छे क्रिकेटर है पर खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंजरीज की वजह से। तो वो कहते हैं कि काश मेरी इंजरीज ठीक हो जाए और मैं भी मैदान पे जाकर चौके छक्के मारूं। बड़ा डिफिकल्ट होता होगा फॉर अ क्रिकेट एंथुसियास्ट टू सिट नेक्स्ट टू द बाउंड्री लाइंस और खेल ना पाए बिकॉज ऑफ इंजरीज। 43 रनों की साझेदारी 28 गेंदों में। तमाम दर्शक जो आए हुए हैं मजा लेते हुए इस मुकाबले का। ये अब सीसीएल 6 का ये पहला मुकाबला। याद रखिए इसके बाद भी आज शाम को एक और मुकाबला खेला जाएगा। जी हां, तेलुगु वॉरियर्स वर्सेस केरला स्ट्राइकर्स के बीच में। और तेलुगु वॉरियर्स चैंपियन 2015 के, तो बहुत ही जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा था। अरे लीजिए, मेरी कृति सैनन आ गई, दिलवाले की दिलवाली कृति सैनन। सर मैं जा रहा हूं सर, आप बैठिए और कमेंट्री करिए। यार आपकी तो आवाज ही बदल गई, मतलब आप कृति सैनन के आगे आपकी तो आवाज बदल गई, आप हमें भी देखना बंद कर दिया आपने। और यहाँ पे 4 रन मिलते हुए, और मुझे लगता है जो फील्डर है उन्होंने गेंद को देखना बंद कर दिया। यही तो स्ट्रेटजी है, यही तो रणनीति है। कृति सैनन को वहां बाउंड्री लाइन पे बैठा दो और डिस्ट्रैक्शन। वैसे मैं भी बहुत अच्छी फील्डिंग करता हूं सर। कहां पे, पहले पोजीशन बताइए। सर कृति सैनन की फील्डिंग कर रहा हूं मैं। यार मुझे पक्का विश्वास था फील्डर कोई पोजीशन में नहीं कर सकते, आप बाउंड्री लाइन के बाहर ही कर सकते हैं। सर आई कैन सरप्राइज यू। पर मुझे लगता है यहां से जो गेंदबाज है ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये फील्ड करना चाहिए था।
अब गेंदबाज अच्छा कार्य कर रहे हैं, जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे 4 रन दिए, पर प्रयास पूरा कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं। 9 ओवर की समाप्ति, 93 पे 1। वे टू गो, प्रीति जिंटा आ गई हैं, द डिम्पल्ड ब्यूटी। अजय जी अब मनमोहित हो चुके हैं। देखिए ये जो वातावरण है, जब ऐसे लोग आते हैं पूरा बदल जाता है। देखिए क्रिकेट तो बढ़िया नजर आ ही रही है, पर प्रीति जिंटा जो आई हैं, मुझे लगता है उत्साह यहाँ पे और बढ़ जाएगा मुंबई हीरोज टीम का। वैसे इतना बढ़िया उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इतना बढ़िया खेल रहे हैं। देखिए सेल्फी होने वाला है, सेल्फी। ये वक्त ही सेल्फी का है, ये हाँ वक्त जी। ही सेल्फी का रह चुका है। प्रीति जिंटा और बॉबी देओल, लकी बॉबी देओल है। और सिद्धार्थ आप भी नीचे होते सेल्फी जरूर होती। 100%। कृति सैनन, प्रीति जिंटा और अजय मेहरा जी के साथ भी मैं कर लेता सेल्फी। शायद वो शायद तीसरा शायद, पर पहले 2 पक्के। पर एक चीज बोलूं, प्रीति कितनी बड़ी क्रिकेट एंथुसियास्ट है। अगर आप उनको देखें तो हर शॉट पर वो चीयर करती है। और चौका। सो लुक्स लाइक प्रीति वाज द लकी मैस्कॉट। बिल्कुल, क्योंकि ना केवल 4 रन मिले, पर सिद्धार्थ साहब में नो बॉल भी थी और आते ही रन आ रहे हैं, उछार हो रही है रनों की। और 100 का जो आंकड़ा है बहुत करीब नजर आता हुआ, 98 स्कोर पहुंच चुका है। व्हाट अ रन रेट। और सिद्धार्थ ऐसे में तो सारी प्रेडिक्शन हमारी गलत हो जाएंगी। हम 170 कह रहे थे, 150 कह रहे थे, यहां तो ऐसा लग रहा है मुझे कि 200 रन भी हो सकते हैं सर आज। मैंने तो 200 कहा था अजय। अच्छा, आपने कहा था 170। नहीं मैं देखिए, मैं पंजाब दे शेर की टीम को पूरा बैक कर रहा हूं और ये फ्री हिट है। ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या करते हैं। हालांकि प्रयास किया था बड़ा शॉट लगाने का, चेज है पर तेज आउटफील्ड है। पर अजय देखा जाए क्रिकेट और बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन, इससे बेटर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, पहले याद देखते हैं कि 100 रन पूरे होते हुए, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है ये जो फिल्म स्टार्स हैं, जो देखिए इनका जो प्रोफेशन है, मेन जो प्रोफेशन है सिद्धार्थ, उसके अलावा क्रिकेट में कितना मेहनत कर रहे हैं। और जैसे हम पहले भी जिक्र कर दिए, जो स्तर है क्रिकेट का वो लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए इतनी इंप्रूवमेंट है, इतने रन बनते हैं, इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा टेक्निकली इतना साउंड है। दूसरे 50 रन 28 गेंदों में आते हुए बहुत तेजी से आए हैं। और पहले भी अगर आप देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 1 गेंद का फर्क है। पहले 50 रन 27 गेंदों में आते हुए। यहां पे एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, हाउ अबाउट क्रिकेटर्स डूइंग फिल्म्स, वो भी होगा क्या कभी? देखिए कई क्रिकेटर्स ने वहां पे गए, प्रयास किया पर फेल हो गए। जैसे पर कि नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, और इतना आसान नहीं है। और वही मैं कह रहा था सिद्धार्थ, तभी मैं तारीफ कर रहा था। देखिए ये जो प्रोफेशन है इनका, ये अलग है। मेन जो प्रोफेशन है वो एक्टिंग है, पर अपने आप को कैसे ढाल लिया है, अपने आप को कैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं। और प्रेशर रहता है यहाँ पे। जो क्राउड्स आते हैं सीसीएल में, हमने पहले 5 सालों में देखा, जबरदस्त क्राउड्स आते हैं, उसके बीच में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। बॉबी देओल की मैं बात कर रहा था, जैसे अब ये गेंदबाजी करते हैं, इतने एक्यूरेट नजर आते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है, जिस प्रकार अपना जो स्तर है बढ़ा रहे हैं, इसकी दाद देनी होगी। और रितेश देशमुख जो बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान है, आप देखेंगे बड़े सीरियस है, बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, वो मैं अभी इनकी तारीफ कर रहा था, लंबे स्कोर की तरफ अग्रसर है, इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। नजर लग जाएगी, नजर लग गई, क्योंकि ये शॉट इन्होंने अभी तक खेला नहीं, अक्रॉस द लाइन खेले नहीं। पर ढिल्लों के यहाँ पे पहली विकेट मिलती हुई 33 पे आउट हुए रितेश देशमुख। 24 गेंदों का सामना किया और एक अच्छी पारी समाप्त होती हुई 105 पे 2। Mm.